Good morning, students. Today we are going to start History Chapter 8, British Policies and Administration in India after 1858. So today we will discuss these topics. First topic क्या है? The new administrative setup. Second topic, the Act of 1858. Third topic, the proclamation of Queen content. Fourth topic, the British control over India administration. And fifth topic, government of India, Viceroy and his council. And next topic, reorganization of army. So now let us start the first topic, the new administrative setup. द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स क्या है? इसके पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858. आपने चैप्टर 3 में रीड किया कि हाउ द हीरोज ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल लेड देयर लिव्स एंड गेव अ सेवियर जॉयल टू ब्रिटिश रूल बाय showing their might and determination to shake the foundation of the ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के स्ट्रगल को सप्रेस कर दिया था, लेकिन यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग बेल था. ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में थी, इसलिए उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए. मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, the new administrative setup. The British government, terrified by the resentment and revolts against the British during first freedom struggle, squarely blamed East India Company. The British held the administrative and economic policies of East India Company responsible for the outbreak of 1857 struggle. Therefore, the British government decided to bring the company rule to an end forever in India. 1857 के रिवोल्ट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लेम किया. ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के कारण 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी रूल को समाप्त करने को डिसाइड किया. नेक्स्ट टॉपिक है द एक्ट ऑफ 1858. Implementing the changes in administrative policies, the British government passed a Charter Act in 1858 known as Act of 1858. Following points were incorporated in the ordinance. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ 1858 पास किया, जिसके मेन पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट पॉइंट, द एक्ट पुट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. The control of the administration of India was transferred to the Queen of England. The Viceroy was made representative of the Queen in India. A post of the Secretary of India and his council was constituted in England for control over administration in India. The Secretary of India was entrusted with the task of administrative setup. Next पॉइंट है क्यून प्रोक्लेमेशन. क्यून प्रोक्लेमेशन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को इंडिया का फर्स्ट वाइसराय बनाया गया. क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया, जिसे गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद के एक दरबार में रीड किया. एनी न्यू इंडियन स्टेट विल नॉट बी annexed by the British government in India. It promised to respect to age-old customs and tradition of India, equality, violence of religious tolerance के बेसिस पर जस्टिस किया जाएगा. इंडियन प्रिंसेस के राइट को डिस्क्लेम नहीं किया जाएगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा. कास्ट ऑफ रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए किया जाएगा. इट प्रॉमिस टू टेक मेजर्स फॉर मोरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ इंडियंस और ब्रिटिशर्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिया में सराहना हुई. इंडिया के
एजुकेटेड क्लास ने इसकी बहुत तारीफ़ की, लेकिन ये एक गलत साबित हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी वेलफेयर के काम नहीं किया और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट इंडियन इंटरेस्ट के ऊपर रहे। नेक्स्ट टॉपिक है द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। By this time, British Empire had also started expanding in other parts of world. In this situation, Indian resources were exploited to fulfill British interested. Other parts of the world, Indian resources were used to bear the cost of British war against other nations. So the administration system of India was under complete कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन सेक्रेटरी एंड स्टैटिस्ट। इंडियन सेक्रेटरी एंड स्टैटिस्ट क्या था? 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया और उसे सारे वर्क दे दिए गए। वह इंडियन अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव को इंग्लैंड से मैनेज करना चाहता था और पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को अकाउंटेबल होता था। एक 15 मेंबर्स की काउंसलिंग होती थी, उसे असिस्ट करती थी और इस ऑफिस को इंडियन सेक्रेटरी ने इंग्लैंड कहा जाता था। इससे कई डिपार्टमेंट्स थे, उनके कई सारे एक्सपेंसेस को भी इंडिया के टैक्स पेयर्स के पैसे दिए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायसराय एंड हिज काउंसिल। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी तक जितने टॉपिक्स मैंने बताए आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए हों। एक्ट ऑफ 1858 के अंडर चेंजेस हुए, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय बनाया गया जो ब्रिटिश मोनार्की का रिप्रेजेंटेटिव होता था। वायसराय इंडिया का सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता था। एक 4 मेंबर काउंसिल वायसराय को असिस्ट करती थी, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। 1861 के एक्ट से एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 6-12 मेंबर्स की बनाई गई। इस एक्ट में प्रोविजंस काउंसिल ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास के बाद दूसरे प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन कोई भी लॉ बनाने के पहले गवर्नर जनरल की परमिशन ज़रूरी होती थी। गवर्नर जनरल की हाईएस्ट अथॉरिटी होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है द 1865 एक्ट में गवर्नर जनरल की फाइनेंशियल अथॉरिटी बढ़ गई। उसे प्रोविंसेस की बाउंड्री को लिमिट या चेंज करने की पावर दी गई। 1869 में गवर्नर जनरल को इंडियंस लिविंग अब्रॉड के लिए लॉ इनेक्ट करने की पावर दी गई। 1876 में रॉयल टाइटल ऑर्डिनेंस पास हुआ, जिसमें क्वीन ऑफ इंग्लैंड को क्वीन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। यह 28 अप्रैल 1876 को हुआ। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ और एडिशनल 16 मेंबर्स को काउंसिल में अपॉइंट किया गया। बाद में 1909, 1919 और 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट पास हुआ, जिसमें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर्स बढ़ाए गए, लेकिन सोल पावर वेस्टेड विद वायसराय।